हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ स्वप्निल सर एंड वेलकम टू एट अनदर वीडियो ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. Already we have started lecture series on coordinate geometry. So if you are interested to see this video, do check in my playlist. So in my today's video, I'm going to explain to you all some of the important formula from coordinate geometry, and at the end we go for solving some of the question which are very much important for your SPI upcoming exam. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में पहले तो हम थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर आवर ऑल एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम अध्ययन टीम. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. This one is our third lecture on coordinate geometry. Okay, so first of all, we are going to understand here the meaning for coordinate geometry. So if we are going to take meaning as word wise, okay, so अगर word के ऊपर से हमने meaning ले लिए coordinate, okay, so coordinate कहाँ पे define होता है? Wherever x and y axis are coming, okay, तो और x and y axis we define here, x and y axis we define here for coordinate of x and coordinate of y. Now see that हमारे पास we have here x axis and the y axis over here. Okay, we have x axis and y axis. So coordinate geometry, it represent here to represent our point in our x and y plane here. Okay, now see that as per the quadrant wise, we already know the sign and quadrant for our x and y plane. Okay, now see that this one is our first quadrant. Okay, this one it is our second quadrant, this one is the third quadrant, and this one is the fourth quadrant. Okay, so in our x and y two-dimensional figure, we have fourth quadrant here. Okay, now if we are going to understand some of the concept like with the x and y axis, we know that all the numbers coming here, वो सब क्या होता है हमारे पास? All are the positive here. So positive 1, positive 2, positive 3. Okay, so negative 1, negative 2, negative 3. These all the number from that side, all are the negative. From here all are the positive number. Okay, when we go up, so हमें all positive number मिलेंगे यहाँ पे +2, +3 here. Okay, and at the down side we get the -1, -2, -3. Okay, so first of all हमें तो ये समझ में आना चाहिए कि how can we represent point for x and y in our xy plane. Okay, तो x and y का point अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें ऑर्डर पेयर में उसका फॉर्म होना है. ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास अगर कोई x एंड y ऑर्डर पेयर है, ठीक है, सो आई कंसीडर x एंड y ऑर्डर पेयर एज अ 3 and -1, 3 and -1 as the 2 points. So for representation of these 2 points in our x and y plane, we consider first point it is for x axis and second point for y axis here. Okay, one point first goes for x axis और दूसरा कहाँ पे जाएगा? y axis पे. Now represent the point just for your example, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट कैसे प्लॉट करना है. ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आपको एसपीआई एग्जाम में नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, 8 to 10 क्वेश्चन, ऑल आर क्वाइट इजी क्वेश्चन. सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. हमें एक तो वहां पे डिस्टेंस फाइंड करना होता है, नहीं तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, नहीं तो वहां पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला, लाइक बेसिक फॉर्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो वो समझ में आना चाहिए कि हाउ कैन वी प्लॉट द पॉइंट. ओके, तो पहले प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अप्लाई रिमेनिंग रिजल्ट्स. ओके, हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट कहां पे जाएगा? एक्स एक्सिस पे जाएगा. सेकंड वन इट गोज टू द वाई एक्सिस. नाउ सी दैट एक्स एक्सिस गिव्स द पॉजिटिव साइन हियर. ओके, तो +3 यहां पे मिलेगा. -1 फॉर वाई एक्सिस इट गोज हियर. ओके, सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट x एंड y इन अवर xy प्लेन. ओके, तो ऐसे हम xy प्लेन के ऊपर पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, पहले तो हम x पॉइंट को फाइंड करेंगे, देन आफ्टर दैट वी फाइंड द पॉइंट ऑफ y. ओके, तो दिस वन इज द बेसिक कंसेप्ट. ऑलरेडी आई होप आपको समझ में आएगा होगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट वाइज साइन समझ लेना है. ठीक है, सो इन अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नो दैट ऑल द कोऑर्डिनेट फ्रॉम x एक्सिस एंड ऑल द कोऑर्डिनेट फ्रॉम y एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव. तो फिर x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा यहाँ पे? It goes to positive, and y coordinate also positive here. Okay, so we take the coordinate from x axis as x and y axis from y. Okay,
Now see that x and y both coordinate are positive. Similarly, अगर हमने second quadrant पे देख लिए, so in our second quadrant we know that x axis always negative. Now take the sign from x axis, okay? तो first point कौन सा होगा? Negative हो जाएगा. Second y से point लिए तो क्या होगा? It goes to the positive, okay? From x axis first point it is negative and second from y axis second point is positive, okay? Now similarly for third axis we have x coordinate negative as well as y coordinate is also negative, okay? मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं? नेगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है? इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है? x कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट वी हैव हियर नेगेटिव, ओके? सो दिस इज द साइन कन्वेंशन बाय देयर क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट वाइज हम साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, ओके? एक बार ये साइन कन्वेंशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए ना, तो आफ्टर दैट फॉर फाइंडिंग द डिफरेंट डिस्टेंस फॉर्मूला लाइक सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, दीज आर वेरी मच इजियर, ओके? तो इसको लेके हम थोड़ा अनदर कंसेप्ट भी समझने वाले हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल, ओके? आफ्टर दैट we are going to learn area of a triangle, okay? Collinear point, coplanar point, all these concepts comes under coordinate geometry, okay? Now section formula भी हम learn करने वाले for internal division and another formula for external division, okay? We are going to revise all these concepts in our next part, okay? तो first आपको ये समझ में आना चाहिए in our coordinate x and y एक्सिस हाउ कैन वी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है? ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना है, ठीक? तो इन अवर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है? किसी एक्स एंड वाई एक्सिस का हमें पॉइंट प्लॉट करना है. फॉर एग्जांपल टिल मूवमेंट हमें क्या मिला था? एक्स एंड वाई का ऑर्डर पेयर मिला था, ठीक है? दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई डायरेक्टली इन अवर फोर क्वाड्रेंट. बट इन केस अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है लाइक एक्स विच इज इक्वल टू 0, लाइक एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, उस टाइम हमें x एंड y का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने आना है, ठीक है? सो वंस यू गोइंग टू प्लॉट दिस पॉइंट, तो आपको उसके ऊपर आप फिगर फॉर्म कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फॉर फाइंडिंग द सेक्शन फॉर्मूलाज, ओके? हाँ, तो इसके ऊपर हमें कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर एसपीआई में नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस आपको मिलता है, ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसपीआई के अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उसको देखेंगे. तो पहले अभी हमें समझ में क्या लेना है कि एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम किसी इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? हाउ कैन वी प्लॉट द पॉइंट फ्रॉम पॉलिनोमियल इक्वेशन. नाउ कंसीडर दैट अगर मैंने कोई y विच इज इक्वल टू 3, आई कंसीडर दिस वन इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ओके? मुझे इसको प्लॉट करना है एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है? नाउ सी दैट अगर हमारे पास किसी x एंड y का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो अगर एक वेरिएबल है तो यू डायरेक्टली प्लॉट, ओके? अगर दो वेरिएबल है तो इन सच ए सिचुएशन हमें एक वेरिएबल को कंसीडर करना है और दूसरे वेरिएबल को फाइंड करना है, ठीक है? सो इट इज ऑब्वियस हमारे पास y का वैल्यू 3 है एंड इफ x इट इज नॉट देयर, तो x को हमें क्या लेना है? डायरेक्टली वी हैव टू टेक इट 0, ओके? तो x क्या होगा? 0, y क्या होगा? 3 होगा, ठीक है? तो x 0 है यहाँ पे, y कहाँ पे मिलेगा? 3. नाउ सी दैट दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड लाइन y विच इज इक्वल टू 3 इन अवर xy प्लेन, ओके? सो इट इज वेरी मच इजियर टू प्लॉट अ सिंगल वेरिएबल, ओके? लाइक सिर्फ x को प्लॉट करना है, y को प्लॉट करना है, इट इज वेरी मच इजियर, ठीक है? अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ सिंगल वेरिएबल अगर दो वेरिएबल मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर x माइनस y which is equal to 1, okay? I consider here x minus y which is equal to 1. For plotting this polynomial equation हमें x and y का वैल्यू मालूम होना है, ठीक है? अगर किसी भी इक्वेशन को हमने कोऑर्डिनेट में x एंड y कोऑर्डिनेट में फाइंड करना है और उसको अगर प्लॉट करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होना है वहां पे मालूम होना है, ठीक है? तो यहां से x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है और वी नो दैट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू फॉर x एंड y यूजिंग अवर पॉलिनोमियल इक्वेशन, हम उसको क्या करते हैं? किसी x के फॉर्म में फाइंड करते हैं, नहीं तो y के फॉर्म में फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल आई कंसीडर हियर x माइनस y विच इज इक्वल टू 1. तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है ना, टेक अनदर टर्म टू द अदर साइड.
सो 1 प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस वाई। तो इसको लेके हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर वाई हियर, ओके। कोई भी सब्स्टिट्यूट करो वाई का वैल्यू और आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम 1 और 2 पॉइंट्स दैट दीज आर मोर देन सफिशिएंट टू प्लॉट अ सिंगल लाइन, ओके। अगर किसी लाइन को प्लॉट करना है ना, तो हमें प्लेन में एटलीस्ट 2 पॉइंट होना है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर फाइंडिंग द गिवन लाइन, ओके। तो अगर हमारे पास x विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई है, तो कंसिडर करो y का वैल्यू 0 ले लो, तो x क्या मिलेगा हमारे पास, x विच इज इक्वल टू 1। आई गेट द फर्स्ट पॉइंट हियर। और पॉइंट भी ऐसे लेना है कि वी कैन प्लॉट दिस पॉइंट इजीली। ऐसे कुछ बड़े पॉइंट ले गए तो लाइक 20, 25, तो उसको प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। These are just a rough calculation for your MCQ एग्जाम्स, ओके। तो इसमें ऐसे कुछ नहीं होता हमारे पास। अभी तक तो हमें ग्राफ पेपर मिल रहा था, उसके ऊपर पॉइंट प्लॉट करना, फिर उसके बाद पॉइंट फाइंड करना। दिस वन इज द आवर प्रीवियस टास्क, ओके। ऐसे लेके हमने ग्राफ फाइंड करे, उसके बाद उसके ऊपर पॉइंट फाइंड करे, ठीक है। बट नाउ इन अवर एमसीक्यू पेपर हमें उतना टाइम नहीं होता है कि हम ग्राफ पेपर ले ले, उसके ऊपर पॉइंट फाइंड करें एंड देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ओके। इन सच ए केस आपको क्या करना है, रब ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। टेक अप्रोप्रिएट लिमिट ऑन अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और उस लाइन को प्लॉट कर दो, आपको एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑल द रब कैलकुलेशन वी हैव टू हैंडल इन अवर एग्जाम, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास y0, तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर y का वैल्यू कोई अनदर टर्म ले लो, y अगर 1 ले लिए तो क्या मिलेगा, सो इफ आई कंसीडर y विच इज इक्वल टू 1, देन आई कैन राइट x विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज 2 हियर, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिला है, 0, 1, दैट मींस x कोऑर्डिनेट 0, सॉरी x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 0, ओके। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, एंड सेकेंडली x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1 हियर, ओके। तो हमारे पास क्या मिल गए, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए कि हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लॉटिंग दीज 2 कोऑर्डिनेट्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके। सो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड हाउ कैन वी प्लॉट द पॉइंट्स इन अवर एक्स एंड वाई प्लेन, ओके। तो अभी देखो, अगर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस पे इक्वेशन दिया है, ठीक है, और यू मे आस्क कि आपको ऐसे पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वहां पे अगर y नहीं तो y को क्या करेंगे हम, 0 करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा अभी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, y विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ y axis x which is equal to what we get, 0 होगा, ठीक है। Remember these 2 points are very much important. Equation of x axis always y which is equal to 0 and equation of y axis always x which is equal to 0 is there, okay. So these are the very much important point, okay. I hope you all have understood. These are the little bit revision about the coordinate geometry. I hope you all have understood everything here, okay, about coordinate geometry. So we are going to learn some of the important formulas based on the coordinate geometry, ठीक है। हाँ, so different formulas for coordinate geometry. We will start our formulas with a simple midpoint formula, okay. So midpoint formula, what is mean by actually midpoint formula, okay. So if we have line segment, I consider line segment here. I consider here line segment AB, okay. And we have third point C which divides our line segment AB, okay. Now I consider here third point C which divides our line segment AB in the equal ratio, okay. So in the equal ratio, that means the part here and the part here both are equal, okay. So if I consider this distance as x, of course this also come as the x, okay. So distance from AC to distance from CB both are equal, okay. And if we have both of the distance equal, तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, midpoint formula, okay, midpoint formula, okay. Now see that the difference between midpoint formula and the section formula, we need to understand it first, okay. So when we have the third point which divides our line segment AB,
third point C which divides our line segment AB in the equal ratio, then we consider we have to apply here midpoint formula. Okay, and what about for section formula? When we have the ratio which divides line segment AB third point C, it's not the equal. Okay, that means AC not equal to CB. So in such a case हम वहां पे यूज क्या करने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला. ओके, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला इज दैट वन ओनली, कि हमें अगर वहां पे कोई रेशियो मिल रहा है थर्ड पॉइंट डिवीजन का, तो अगर इक्वल है तो मिड पॉइंट यूज करो, एंड नॉट इक्वल है तो डोंट यूज द मिड पॉइंट, यू कैन यूज डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला. ओके, नाउ सी दैट we have here section formula for internal division and section formula for external division. उसको भी समझ लेंगे. तो मिड पॉइंट क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेट को ऐड करो, इसके कोऑर्डिनेट को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2. ओके, नाउ आई कंसीडर हियर दिस वन इज हैविंग स्मॉल b, this one which is having small a, okay, as their measurement. Okay, now you may consider here some another point. Just for the single point I explain here, अगर हमें इस लाइन AB के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या होगा? सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो वी ऐड देयर पॉइंट्स, सो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 हियर. ओके, अगर सिंगल पॉइंट है. नाउ इफ आई कंसीडर x1 y1 बोथ आर द कोऑर्डिनेट हियर, x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट फॉर अवर लाइन. ओके, तो यहाँ पे x1 y1 है, वी हैव x2 y2 हियर. For finding midpoint formula, we add x coordinate with the x and y coordinate with the y. Okay, that means x1 plus x2 divided by 2. a क्या हो जाएगा हमारे पास? This one is our first coordinate. Okay, and similarly y1 plus y2 divided by 2. a क्या हो जाएगा? This one is our second coordinate for our midpoint formula. Okay, so that's it here for midpoint formula. इतना ही हमें समझ लेना है. नाउ कंसीडर दिस वन, ये हमारे पास रिकैप वीडियो है. ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम रिवीजन करने वाले हैं. ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी एंटायर वीडियो, डू चेक इन माय प्लेलिस्ट. ओके, हाँ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद उससे रिलेटेड है वो सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, सो हम थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला समझ लेंगे. ठीक है, सो व्हाट अबाउट फॉर सेक्शन फॉर्मूला? सेकेंड सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला. ओके, नाउ सेक्शन फॉर्मूला भी दो है, वन इट इज फॉर इंटरनल डिवीजन, अनदर फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. तो हमें फर्स्ट तो इंटरनल डिवीजन को ही समझ लेंगे. एक्सटर्नल डिवीजन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एसपीआई एग्जाम. ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस आईक्यू देखे एसपीआई एग्जाम के, तो उसके ऊपर उसमें हमें एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले. ठीक है, बट इंटरनल डिवीजन एवरी ईयर देयर इज अ सिंगल क्वेश्चन, तो उसको अच्छी तरह से कर लो. ठीक है, section formula for internal division. So what we have section formula for internal division? So we have to understand section formula for internal division. Okay, so what actually meaning of a section formula for internal division? अगर हमारे पास कोई line segment AB है, okay, and third point C which divides our line segment AB. Okay, so I consider here line segment AB. Okay, let me plot the line segment AB here. Third point we have here is C which divides our line segment AB with the ratio m as to n, but maybe m not equal to n or m equal to n. Okay, दोनों भी हो सकता है. अगर आपको डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, इवन इफ देयर रेशियो आर इक्वल, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई. ओके, आपको आंसर करेक्ट ही मिलेगा. ठीक है, तो अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है एंड थर्ड पॉइंट C which divides our line segment AB internally. Okay, now see that it is an internal division, that's why we use section formula for internal division. Okay, अगर वो internally divide कर रहे हैं with the ratio m as to n, then we apply section formula for internal division. Okay, and external division exact opposite of internal division. तो क्या होगा एक्सटर्नल फॉर्मूला? सिर्फ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन इट सेज दैट वी हैव लाइन सेगमेंट AB which थर्ड पॉइंट C divides our line segment AB with the external division. उसको अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे किसी लाइन सेगमेंट AB को, नाउ सी दैट कैसे एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास कुछ ऐसा पॉइंट है A B, ओके,
and the third point, C, which divides line segment AB with a ratio m as to n here, okay, with the ratio m as to n. Then we apply section formula for external division, okay. Now let me write section formula क्या होता है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है. तो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है. अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कुछ हमारे पास वर्टाइसेस होगा, नाउ आई कंसीडर हियर वर्टाइसेस ए, वो क्या होगा x1 y1, ओके. वर्टाइसेस ए क्या होगा x1 y1. सिमिलरली वर्टाइसेस बी क्या होगा x2 y2, ओके. एनी पॉइंट यू कंसीडर इन ओवर एक्स वाई प्लेन, वहां पे आपको ऑर्डर पेयर में पॉइंट मिलेंगे, एक तो x मिलेगा एक तो y मिलेगा. अभी क्वेश्चन में भी ऐसा होगा, अगर इन केस आपको एसपीआई के क्वेश्चन में ऐसा आ गए, फाइंड आउट द थर्ड पॉइंट, ओके, एंड गिवन x एंड y अनदर टू कोऑर्डिनेट्स देयर. अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, उसे थर्ड पॉइंट फाइंड करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो कुछ आंसर आने वाला है वो x एंड y के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएगा, ठीक है. इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है. तो अभी हमारे पास क्या है, ए कोऑर्डिनेट है उसका x1 y1, कोऑर्डिनेट फॉर ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, ठीक है. तो कंसीडर करो सी क्या है हमारे पास xy है, ठीक है, xy. तो हमें फाइंड क्या करना है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ सी. हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो क्या हो जाएगा, वी जस्ट टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, ओके. तो x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m डिवाइडेड बाई n प्लस m, ओके. ये क्या होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला. नाउ लेट मी राइट द सेक्शन फॉर्मूला. हाँ, तो क्या होगा x1 इंटू n, x1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन n प्लस m. दिस वन इज अवर सेक्शन फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट. देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट, एक तो x है एक तो y है, तो आंसर जो आएगा which comes in the form of x and y, okay. So first coordinate x1 into n plus x2 into m divided by n plus m. Second coordinate क्या हो जाएगा, y1 into n, y1 into n plus y2 into m. Okay, now see that what I have done here, y1 into n, their cross product, we have to take the cross section, okay. So y1 into n plus y2 into m divided by n plus m. This one is our y coordinate, okay. So यहाँ पे x coordinate है, यहाँ पे y coordinate, okay. So x and y coordinate we have here. तो ये हुआ हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ओके. सो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है. पॉइंट अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इट विल गिव हमें पॉजिटिव साइन दे देगा, ठीक है. और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव साइन दे देगा, ठीक है. सो यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नली के क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे तो उसमें क्या हो जाएगा, x1 इंटू n माइनस x2 इंटू m डिवाइडेड बाई n माइनस m, ठीक है. ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट. आफ्टर दैट y1 इंटू n माइनस y2 इंटू m अपॉन n माइनस m, ये क्या होगा हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ओके. सो दैट्स इट हियर फॉर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन फॉर अवर सेक्शन फॉर्मूला, ओके. उसके बाद हमें थोड़ा अलग पॉइंट लेना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हाउ कैन वी फाइंड. तो आई होप आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, बहुत इजी होता है. अगर कोई दो पॉइंट है हमारे पास इन अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एंड वाई के फॉर्म में अगर दो पॉइंट है तो उसको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, मे बी इट्स फ्रॉम ओरिजिन और इट्स फ्रॉम नॉन ओरिजिन, ओके. अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन विद द फिगर. हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको समझ लो सिर्फ, ओके. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लो, ठीक है. अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट्स गिवन, एंड इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला. वर्ड में ही मीनिंग है, बट सिंपल हमें ये मालूम होना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे याद रखे, ठीक है. तो नाउ सी दैट फर्स्ट एक तो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एक तो ओरिजिन से नहीं तो नॉन ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है. अगर ओरिजिन पॉइंट से फाइंड करना है तो कंसीडर दैट ओ हमारे पास ओरिजिन है और अनदर पॉइंट है ए है x1 y1, ठीक है. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या ले ले, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर
origin point, it always exists where x and y are intersect. Okay, तो देखो इसके लिए इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट कहां पे, x एंड y को इंटरसेक्ट करने वाला ये जो डॉट किए ना हमने बड़ा वाला, दिस वन इज द ओरिजिन पॉइंट. ओके, वेयर x एंड y इंटरसेक्ट. तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ये ओरिजिन है तो उसका कोऑर्डिनेट x का क्या होने वाला है, इट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट आल्सो 0 हियर. ओके, सो x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट आर 0 फॉर आवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओके, इसको अच्छी तरह से समझ लो. अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, हमारे पास ओरिजिन से पॉइंट फाइंड करना है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, 0 0. ठीक है, एंड अनदर कोऑर्डिनेट एज ए x1 y1. ठीक है, अभी O to A हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. ओके, and the distance formula it says that for finding the distance between any two points we subtract their x coordinate and y coordinate. Okay, तो क्या हो जाएगा, x1 minus 0 bracket square plus y1 minus 0 bracket square. ओके, तो अगर 0 को निकाल देंगे इट लाइक नथिंग. ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा, x1 square plus y1 square is the distance between point origin to some another point x1 y1. okay, so क्या होगा, square root of x1 square plus y1 square which is our required distance formula between two points. okay, where one point it is the origin. अगर हमारे पास कोई another point है, it is not from the origin. okay, non origin point. तो अगर a को हमने कंसीडर कर दिए, यहाँ पे o को कंसीडर कर दिए x1 y1. okay, point o here and point a consider here x2 y2. अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो इन सच केस व्हाट वी डू, हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं. तो क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर टू नॉन ओरिजिन पॉइंट्स. ओके, so that's it here for distance formula. okay, after that distance formula we know we have here collinear point. तो कोलिनियर पॉइंट आप सब तो लर्न करते आ रहे हैं. ठीक है, 6th 7th 8th से, तो थोड़ा एक रिकैप समझ लो. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दे विल नेवर इंटरसेक्ट. एक तो वो पैरेलल हो जाएगा, नहीं तो अलोंग लाइन हो जाएगा. ठीक है, सो कोलिनियर पॉइंट वी राइट हियर, लेट मी एक्सप्लेन विद द फिगर. So now see that if I consider this line AB which is a parallel to line BC. okay, line AB parallel to line BC, then we say that line AB and BC both are the collinear line. okay, this one is the first condition. okay, for collinear line. second condition क्या होता है, collinear line के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है. ठीक है, A है, B है एंड C है. ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट है. वो कोलिनियर कब होगा, व्हेन दे आर अलोंग. ओके, लाइन ए बी अलोंग विद द लाइन बी सी. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन वी से दैट these 3 points are collinear point. okay, so that's it here for the collinear point. and always remember that if we have collinear point in our x and y plane then we cannot form a triangle. तो ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या कभी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है पैरेलल लाइन से, तो कभी ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा. ओके, वी नीड इंटरसेक्टिंग लाइन टू फॉर्म ए ट्रायंगल. नाउ सी दैट for triangle we need like these 3 lines. okay, then and only then we can form the triangle. okay, now see that if these 3 lines are intersecting, that means we call them as the non collinear line. okay, तो अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर लाइन है तो ही क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल फॉर्म कर देगा. ठीक है, क्या होगा, नॉन कोलिनियर. अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर लाइन है तो ही ट्रायंगल फॉर्म होगा. ठीक है, नाउ सी दैट दीज 3 आर द नॉन कोलिनियर लाइन, दैट मींस एरिया ऑफ आवर ट्रायंगल इट ऑलवेज गोज टू 0. ओके, सो इफ देयर ट्रायंगल डजंट एग्जिस्ट देयर देन वी कॉल कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, वहां पे 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आर 0. ओके, तो इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है एसपीआई के क्वेश्चन पेपर में, find out the some constant. okay, using 3 points are collinear. okay, तो 3 वर्टाइसेस है, 3 वर्टाइसेस को अगर हम प्लॉट कर देंगे इन अवर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे तो हमें ट्रायंगल मिलेगा. ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायंगल है उसको प्लॉट कर दिए तो वी कैन डायरेक्टली यूज द
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर फाइंडिंग थर्ड वर्टाइसिस। ओके, तो अगर हमारे पास तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोई इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, so that's it here for our distance formula. Is there anything remaining? Midpoint formula also we have seen, a section formula for internal division, external division, distance formula also seen. Okay, तो अगर कुछ बाकी भी रह गए ना तो we will see while examples are there. Okay, तो एग्जाम्पल सॉल्व करते करते हम उसको आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टिल इट इज रिमेनिंग कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सिंपल पॉइंट है, बेस इंटू हाइट है, तो उसको क्या करते हैं हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एज ए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो इंस्टेड ऑफ अ बेस इंटू हाइट अगर हमने वहां पे x1 y1 कोऑर्डिनेट ले लिए, कोई एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सेकंड x2 y2 है, थर्ड x3 y3। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को लेके हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्म होता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एज द लेटर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दिस बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, तो पहले हम वी हैव टू सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। ओके, जो कुछ हमने लर्न कर लिए ना यहाँ पे, सो वी हैव टू सॉल्व सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स गो फॉर सॉल्विंग द कंसेप्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो इवन आफ्टर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, डिफिकल्टी है, लेट मी नो इन माय कमेंट सेशन। ओके, तो आई विल कम अप विद सम अनदर वीडियोस। हाँ, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल गिवन, these are the example I have taken, okay, not from the PYQ of SPI, but these are the important question or similar question that previously asked in SPI question paper. Okay, जो SPI का previous year question paper है उसी में ये similar type of the question पूछे गए। ठीक है, तो इस बार में भी पॉसिबिलिटी की सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग। ओके, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, two vertices of a triangle given. Okay, triangle ABC we have here. Okay, and it's a two vertices given AB and it's a centroid. Okay, now still centroid formula remaining. I will explain centroid formula और उसके बाद एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास क्या है, एक तो ट्रायंगल गिवन है। लेट मी प्लॉट द ट्रायंगल हियर फर्स्ट। ओके, so see here, I do have one triangle ABC. Okay, triangle A B and C, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, विच हैविंग वर्टाइसेस A 6 4, A क्या है हमारे पास 6 4 है, B क्या है -2 एंड 2 है, एंड वी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर C। अगर हमारे पास कोई वैल्यू मालूम नहीं तो इन अवर मैथमेटिक्स व्हाट वी डू, हम उसको x एंड y कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट फॉर C विच इज x एंड y हियर। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर फॉर अवर एंगल बी। ओके, एंगल बाइसेक्टर फॉर एंगल बी, वी आई ड्रू इट हियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है ट्राइंगल के लिए। ठीक है, एवरी एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट सम सर्टेन पॉइंट। ओके, वो क्या होता है हमारे पास, सेंट्रॉइड। ओके, नाउ सी दैट एंगल बाइसेक्टर ए हियर यहां पे मिल रहे। ठीक है, सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर सी यहां पे मिल रहे। ठीक है, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इट इज हियर जी ऑफ which is given 3 4। ओके, वो गिवन है हमारे पास centroid with g of 3 4 here। ओके, that means when centroid get formed, when angle bisector of a triangle, every angle bisector of a triangle meet at some certain point, एक कुछ तो फिक्स पॉइंट पे तीनों एक जगह पे मिलते हैं। ठीक है, and that point we consider it as the centroid for our triangle। ओके, तो centroid of a triangle क्या हुआ है हमारे पास, g of 3 4 हियर। ओके, हाँ, तो हमारे पास अगर सेंट्रॉइड फाइंड करना है किसी ट्रायंगल के लिए, उसमें कोऑर्डिनेट कंसीडर करो x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 है एंड x3 y3। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन वी फाइंड द सेंट्रॉइड बाय यूजिंग फॉर्मूला। लेट मी राइट द फॉर्मूला। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे, नाउ सी दैट हमारे पास तो कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो उसको ऐड करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x का पूरा कोऑर्डिनेट ऐड करना है, y का पूरा कोऑर्डिनेट ऐड करना है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट फॉर x विच इज हियर x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, डिवाइडेड बाय 3 एंड
y1 plus y2 plus y3 divided by 3. These are the two coordinate for x and y to our centroid. ओके हाँ, तो सेंट्रॉइड के लिए ये दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, और x1 x2 x3 y1 y2 y3 कहां पे होने वाले, तो हमने तो यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए 6 4, तो उसकी जगह हम कंसीडर कर सकते हैं a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड c का कोऑर्डिनेट है x3 y3. ठीक है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट को लेके हम सेंट्रॉइड फाइंड कर देंगे, तीनों x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. ओके, तो दिस वन इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंट्रॉइड. ओके, तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास. अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ये पूरे कोऑर्डिनेट को हम पुट करने वाले हैं सेंट्रॉइड में. ठीक है, तो पहले तो मालूम होना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है. ठीक है, सो लेट मी डिफाइन x1 क्या होगा हमारे पास. देखो अगर कोऑर्डिनेट ये 6 4 है ना, तो फर्स्ट x1 6 होगा और y1 क्या होगा 4 होगा. x1 विच इज 6 एंड y1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. ठीक है, x1 6 y1 4 हो जाएगा. x2 क्या है हमारे पास, x2 which is a, now see that this one is a x2 which is a -2 and y2 we have here क्या है हमारे पास y2 which is a 2. okay, and x3 y3 we have to find it here. okay, so x3 हमें फाइंड करना है, उसको हमने x कंसिडर करें, y3 भी फाइंड करना है, I consider this one as y. okay, and centroid we have given g of 3 4. okay, g of 3 4. okay, this one is a centroid. तो हमारे पास क्या है, ये सेंट्रॉइड गिवन है, इस सेंट्रॉइड को लेके हमें इसमें वैल्यू पुट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द x and y coordinate for our centroid. okay, now let's move for the solution. yes, now put all the values in our centroid. We have the value for centroid is g of 3 4, g of 3 4 which is given in our example, which is our centroid, equal to x1 plus x2 plus x3. okay, x1 plus x2 plus x3, that means 6 plus minus 2. okay, 6 plus minus 2 plus x3 क्या है हमारे पास x है. okay, x3 का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है ना, so keep that value as it is. okay, so x3 it remain x divided by 3, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है. सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 plus y3. ठीक है, y1 4 plus 2 plus y. okay, 4 plus 2 plus y divided by 3, ये क्या हुआ है हमारे पास y का कोऑर्डिनेट. ठीक है, 4 plus 2 plus y divided by 3, दिस वन इज द कोऑर्डिनेट फॉर y. तो अभी देखो इसको लेके हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है. नाउ सी दैट कोई हमारे पास g ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू r ऑफ वाई जेड ऐसे कुछ होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का दूसरे x कोऑर्डिनेट से इक्वल होगा एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट y का दूसरे y कोऑर्डिनेट से इक्वल होगा. ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड होता है हमारे कोऑर्डिनेट के बीच में, लेट मी एक्सप्लेन. ओके, सो अगर हमारे पास हमने कुछ ऐसे पॉइंट ले लिए, लेट मी एक्सप्लेन द पॉइंट. अगर मेरे पास हमारे पास कुछ यल ऑफ x1 y1 विच इज इक्वल टू यम ऑफ x2 y2. ओके, ये दोनों कोऑर्डिनेट मेरे पास इक्वल है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ अनदर एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए कि दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होगा. ठीक है, हाँ, नाउ सी दैट यल ऑफ x1 y1 विच इज इक्वल टू यम ऑफ x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट कैसे इक्वल है. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट x से इक्वल होगा. x कोऑर्डिनेट कहां पे इक्वल होगा, x से होगा ऑब्वियसली. नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट कहां पे होगा सर, y कोऑर्डिनेट कहां पे होगा, y से इक्वल होगा. देन y1 विच इज इक्वल टू y2 होगा. तो यहां पे हाउ कैन वी होल्ड इक्वालिटी हियर. ओके, नाउ सी दैट यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड हो रहे. ठीक है, तो x हाउ नाउ सी दैट x1 विच इज इक्वल टू x2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहां पे इक्वल होगा, x1 विच इज इक्वल टू x2 से होगा एंड सेकंड कहां पे होगा, y1 विच इज इक्वल टू y2 से हो जाएगा. ठीक है, so that's it for our coordinate of x and y. okay, now see that ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल होगा फर्स्ट से एंड सेकंड होगा सेकंड से. so 6 minus 2 plus x divided by 3 which is equal to फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3 है. ठीक है, एंड सेकंड क्या हो जाएगा अभी हमारे पास 4 which is equal to 4 plus 2 plus y divided by t. okay, so 4 which is equal to 4 plus 2 plus y, 4 plus 2 plus y divided by
3 here. Okay, so this one is our x coordinate, this one is our y coordinate. Now see that our first equation it is having involvement of x, तो आपको easily x का वैल्यू मिलेगा. तो क्या होगा 6 माइनस 2 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 9 होगा. ठीक है, 6 माइनस 2 प्लस एक्स क्या होगा 9 होगा. तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4 होगा. टेक इट टू द अदर साइड, वी गेट द 9 माइनस 4 हियर. तो x का वैल्यू क्या मिलेगा which is a 5. Okay, I get the value for x. Similarly find out the value for y. Okay, तो इसमें क्या होगा 4 3 जा 12 which is equal to 4 plus 2 क्या होगा 6 हो जाएगा. उसको 6 लिख लो. 12 which is equal to 4 plus 2 6 plus y. Okay, so 3 I have taken here. वो हमारे पास क्या हो गए 12 हो गए. Okay, and remaining 4 plus 2 plus y. So 12 minus 6 we get the y which is equal to 6 here. Okay, तो x का कोऑर्डिनेट 5 है, y का कोऑर्डिनेट क्या मिला है हमारे पास 6. ठीक है, सो x 5 y 6 विच गिवन इन आवर ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है डी. ओके, सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर योर एसपीआई एग्जाम. ओके, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पी फॉर विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. हमारे पास क्या दिए है 3 पॉइंट्स है. वो कैसे है कोलिनियर है. ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करे मीनिंग ऑफ कोलिनियर. एक तो कोलिनियर पॉइंट कब होगा जब एक तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, नहीं तो वो लाइन क्या होगा अलोंग हो जाएगा. ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे. ठीक है, कंसिडर करो मेरे पास आई हैव हियर ए ऑफ -1 3 which is first point given, second point here b of 2p given, and third point c of 5 1 है. ओके, c of 5 -1. ओके, 3 पॉइंट गिवन है हमारे पास. 3 of these points are collinear. Okay, now let me draw how the collinear points are looking. Okay, look like. Now see that we have point A to point B and point B to point C. Okay, so here point A to point B, point B to point C here. Okay, और कोलिनियर लाइन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, एंड राइट AB which is a parallel to BC. Okay, so this one is our first condition, this one is our second condition. Okay, तो ये क्या है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है. अगर हमारे पास कोई कोलिनियर पॉइंट है तो इट इज पॉसिबल दैट वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल. नेवर, वो ट्रायंगल कभी फॉर्म ही नहीं होगा कि कोलिनियर पॉइंट कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अगर कोई ट्रायंगल को फॉर्म करना है तो हमारे पास ऐसे 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना है. ठीक है, देखो 3 ऑफ दीज आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अगर ऐसे हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइक दिस वन, ए कंसिडर करो बी एंड सी, तो ये कोलिनियर हो गए कि कभी. दीज आर नेवर कोलिनियर पॉइंट. ये कोलिनियर पॉइंट कभी नहीं होगा. ठीक है, सो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं, कोलिनियर पॉइंट यहां पे है. ठीक है, तो अगर हमारे पास वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मींस ऑब्वियसली दे कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल. अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे तो वहां पे उसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. वेरी गुड. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर अवर गिवन कोलिनियर पॉइंट. ओके, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाउ कैन वी राइट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर 3 पॉइंट्स. नाउ लेट मी राइट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फर्स्ट फॉर 3 पॉइंट्स. ओके, तो हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, 1/2 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे 1/2 x1 अंडर ब्रैकेट वी हैव अनदर ब्रैकेट, आई विल राइट दिस वन लेटर. ओके, दिस वन यू मे कंसिडर ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, x1 को लिख लो पहले, फिर उसके बाद x2 को लिख दो. ओके, उसको नेक्स्ट ब्रैकेट बनाओ, फिर x3 को लिख दो, थर्ड ब्रैकेट बनाओ. ठीक है, ये क्या है हमारे पास टोटल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है. ठीक है, अभी देखो x1 के अंदर ब्रैकेट है ना, उसमें कुछ टर्म ऐड करना है. ठीक है, अगर यहाँ पे x1 है ना, यहाँ पे क्या करेंगे 1 का टर्म नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे y -y कर दो, यहाँ पे भी y -y करो, यहाँ पे भी y -y करो, यहाँ पे भी क्या करो y -y कर दो. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे x1 है ना, 1 का टर्म ऑलरेडी हुआ है. 1 के बाद क्या होता है 2 3, यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 2 है ना, अभी देखो 1 है तो 2 3 हो गए, 2 है तो क्या होगा 3 × 3 1 हो जाएगा. ठीक है, और 3 है तो क्या होगा 1 2 हो जाएगा. सीक्वेंस कैसे लेना है हमें, 1 2 3 का, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, एक तो 2 से 3 जाएंगे, 3 से 1 जाएंगे. ठीक है,
नहीं तो 1 से 2 होगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। यही सीक्वेंस लेना है हमें, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, ठीक है। So this one is our area of a triangle for 3 different points. Okay. Now see that हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 है, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वन ऑल गोज टू द 0। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट x1 का वैल्यू क्या है, अभी देखो x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों को फाइंड कर दो, ठीक है। तो x1 क्या है हमारे पास, x1 विच इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1, x1 y1 क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 3। आफ्टर दैट x2 क्या है हमारे पास, x2 2, y2 क्या है, वी हैव y2 विच इज इक्वल टू p, x3 इट इज 5 एंड y3 क्या है, y3 क्या होगा -1। ओके, सो वी हैव x1 y1 x1 आफ्टर दैट y1 x1 -1 y1 3 x2 2 y2 p x3 5 y3 -1। ओके, तो हमारे पास x1 y2 x2 y2 and x3 y3 all the points are there। okay, now just go for substitution of these values। okay, तो x1 क्या है हमारे पास -1, x1 is -1, after that y2 minus y3 minus y3, तो क्या होगा p minus -1। okay, p minus of -1। बी केयरफुल अबाउट देयर साइन कन्वेंशन, अगर आपने किसी एक साइन का भी पॉजिटिव से निगेटिव कर दिए तो यूर आंसर मे बी इट कम्स डिफरेंट। ओके, तो उसको बी केयरफुल फॉर फाइंडिंग द कैलकुलेशन। प्लस x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड y2 माइनस y3 माइनस y1। ओके, सो y3 माइनस y1, सो -1 -3 ओके, y3 माइनस y1। ओके, प्लस x3 क्या है हमारे पास, वी हैव x3 विच इज अ 5 अंडर ब्रैकेट y1 माइनस y2, सो y1 माइनस y2। ओके, सो 3 माइनस p हियर। ओके, सो ऑल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी हैव हियर इज 0, तो 1/2 भी क्या हो जाएगा उस साइड पे लेके, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 विच इज इक्वल टू, वी राइट हियर -1 इंटू p विच इज अ -p, -1 इंटू माइनस इट ऑलवेज ऑलरेडी पॉजिटिव इनसाइड ब्रैकेट। सो अगर माइनस से बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस इट गोज टू -1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप प्लस 2 इंटू -1। ओके, सो वी राइट 2 इंटू -1, सो -2, आफ्टर दैट 2 इंटू -3 माइनस ऑफ 6, so plus 3 into 5 we write 15। okay, 3 5 are 15, so 5 into negative of p we write negative of 5p। okay, so 5 into p I written negative of 5p। let's go for finding the values। okay, so 0 को ऐसे ही रख दो, -p 8 and -5p we write 0 which is equal to minus of 6p, so -p minus 5p it goes to -6p। okay, so -1 -2 -6। okay, -1 -2 -3 -6 -9 -9 plus 16 we -9 plus 15 we write +6 here। okay, -9 plus 15 we write +6, so we write here 6p which is equal to 6, take that negative 6p to the other side, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव 6p मिलेगा, रिमेनिंग साइड पे 6 बाय की। ओके, तो p which is equal to what we write 6/6 here। ओके, तो p का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड आंसर विच गिवन इन अवर ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी हमारे पास ट्रू है। ओके, तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट गिवन था। ओके, बाय यूजिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर अवर रिक्वायर्ड कांस्टेंट। ओके, तो p का वैल्यू हमारे पास 1 मिल गई। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से हमें -6 8 का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव लर्न ओरिजिन पे पॉइंट कौन सा होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो कंसीडर दैट हमारे पास ओरिजिन है यहाँ पे, उसका पॉइंट 0 0 है, ठीक है। ओरिजिन ओ का पॉइंट क्या है हमारे पास 0 0 है, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, क्या है हमारे पास -6 8 है, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। अभी इसको लेके हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच में, ठीक है। ऑलरेडी वी ऑल नो दैट फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी यूज
square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. ये क्या होता है हमारे पास? दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, हाँ, तो दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे लेते हैं? इसको लेते हैं. ठीक है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x1 y1 का वैल्यू 0 0 है, x2 y2 का वैल्यू क्या है? -6 8 है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन अवर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो -6 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. ओके, 8 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, गो फॉर फाइंडिंग देयर वैल्यूज. हमें क्या मिलेगा? -6 माइनस 0 मीन्स -6 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 मीन्स 8 स्क्वायर. ओके, so we know that 6 minus 6 square is a 36 plus 8 square it is a 64. So 36 plus 64 we write it as the square root of 100, and 100 we know that which is a perfect square for 10. Okay, so we write a 10 as the perfect square for square root for 100. Okay, now see that the distance from origin to -6 8 we write this one is the 10 here. So our required answer given in our option C, the distance from origin which is a 10 here. Okay, I hope you all have understood this solution. बहुत इजी पॉइंट था. इसकी जगह आप पे नॉन ओरिजिन भी पॉइंट दिया होगा. ठीक है, नॉन ओरिजिन मींस द इंस्टेड ऑफ 0 0 आपको कोई अनदर पॉइंट होगा x3 y3, तो उसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. हाँ, तो हमारे पास क्या है? सिमिलर एग्जांपल लाइक सेकेंड वन. ओके, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पॉइंट -5 1 1 p एंड 4 -2 आर कोलिनियर. अगर हमारे पास ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हमें क्या करना है? उसके बीच में p का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, यस, तो p का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ऑलरेडी वी नो दैट अगर हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट है तो वहां पे ट्रायंगल तो एग्जिस्ट नहीं होगा. अगर ट्रायंगल एग्जिस्ट है नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी एग्जिस्ट नहीं होगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कितना मिलेगा हमारे पास वहां पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर पॉइंट. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर पॉइंट is always 0. Which is always 0. ठीक है, अगर हमारे पास कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल है कोलिनियर पॉइंट के लिए, वो ऑलवेज 0 होता है. ठीक है, तो अगर वो 0 है तो हमारे पास रिजल्ट मालूम है. हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं हम? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को? हम ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करे प्रीवियस एग्जांपल में. ठीक है, तो x1 है तो y2 माइनस y3, x2 है तो क्या लिखेंगे हम? y3 माइनस y1, एंड x3 है तो क्या होगा? y1 माइनस y2. ये क्या हो जाएगा? पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा. ठीक है, ये पूरे पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 0. ओके, बिकॉज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इट इज 0. दैट मीन्स ऑल दिस फॉर ऑल गिवन फॉर्मूला हैविंग वैल्यू 0 हियर. तो अभी हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 आर देयर इन आवर क्वेश्चन. तो हमें x1 x2 y1 y2 एंड x3 y3 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट मालूम होना है. ठीक है, सो बाय यूजिंग -5 1 1 p एंड 4 -2 फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ठीक है, तो x1 y1 यहां से मिलेंगे हमारे पास x1 y1. तो x1 क्या है हमारे पास? -5. y1 क्या मिलेगा हमारे पास? 1 मिलेगा. सिमिलरली x2 वी गेट हियर 1, y2 क्या मिलेगा? p मिलेगा. सिमिलरली x3 4 and y3 we get it here as a -2. Okay, now find out the answer for, after substitution of these values, find out the answer for p here. Okay, हमें find क्या करना है? value for p. Okay, हमें p का value यहाँ पे find करना है. ठीक है, so find out the value for p and let me know the answer in comment section. Okay, तो मुझे comment section में answer करना है सबने. Okay, similar example हमने previously solve करे. ठीक है, so this one is a similar example like previous one. उसको सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर इन माय कमेंट सेशन. ओके, so I hope you all have understood similar example like a previous one. Okay, this is just a part of calculation. Find it out the answer and tell me in my comment section. Okay,
ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, तो हमारे पास क्या है, सिमिलर एग्जांपल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के फॉर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है. We have to find out the value for k, okay, where 3 points are collinear. Okay, 3 point कैसे, 3 points are collinear. Okay, and we already learn here, if the 3 points are collinear, then we write their area of a triangle always goes to 0. Okay, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑलवेज गोज टू 0. ओके, इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 0 हो जाएगा. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 0 हो रहा है, तो हमें क्या 0 हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 x1 ब्रैकेट x2 y2 माइनस ओके, लेट मी राइट इट अगेन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3. ओके, प्लस x2 ब्रैकेट ओके y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2. इसका पूरा वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, 0 मिलेगा. ठीक है, सो इफ द वैल्यू गोज टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x1 y1, x1 2 y1 3 x2 4 y2 k x3 6 y3 माइनस 3. ओके, तो हमारे पास कितने पॉइंट मिलेंगे, दिस वन एंड दिस वन. So we get the 3 point here. We get the 3 point here given in our question. Okay, first point, second point, third point is there. Okay, और उसको पुट कर दो इस फॉर्मूला में, you will get the answer. Okay, और मुझे बोलना है k का आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, let me know in my comment section value for k. Okay, this one is also question for you all. Okay, सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व करे. ठीक है, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 के आंसर फाइंड करना है. ठीक है, so let's go for the next question. सिमिलर एग्जाम्पल लाइक प्रीवियस वन. ओके, सो इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था. ओके, इन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या है, इन व्हाट रेशियो द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 minus 1 and 8 9. Okay, now see that if we have to find out the ratio between two line point, okay, between two point, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे यूज क्या करने वाले हम, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेक्शन फॉर्मूला फॉर 3 पॉइंट्स. ओके, तो हमारे पास लाइन क्या है, व्हाट इज द लाइन, वी हैव लाइन हियर x माइनस वाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0. ओके, x माइनस वाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 विच इज गिवन लाइन. ओके, विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले दो कोऑर्डिनेट है. व्हाट इज द टू कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 minus 1. Okay, first coordinate here 3 minus 1, second coordinate we have here 8 9 here. Okay, so we have two of the coordinate. उसमें क्या करना है हमें, ये दो कोऑर्डिनेट गिवन है, वो क्या कर रहे हैं हमारे पास, लाइन सेगमेंट को x माइनस वाई माइनस 2 को डिवाइड कर रहे हैं. मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, हाँ, तो x माइनस वाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ओके, हाँ, तो हमें क्या करना है, अभी इसमें से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो हमें तो मालूम नहीं कि द पॉइंट विच डिवाइड्स अवर लाइन सेगमेंट वो तो इक्वल रेशियो में कर रहा है कि अनइक्वल में कर रहा है. ठीक है, so in such a case we always apply section formula for internal division. Okay, and ratio we don't know here, we have to find out the value for the ratio. Okay, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे हम, उसमें कंसीडर करो m as to n are the ratio which divides our line segment. ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले रेशियो को हम क्या करेंगे, m as to n कंसीडर करेंगे. ठीक है, यस, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 minus 1, सेकंड 8 9, which divides our line segment EB which is consider point C. Okay, वो कौन से पॉइंट में कर रहे हैं, m as to n में कर रहे हैं. ठीक है, हाँ, तो फिर हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे m एंड n का वैल्यू फाइंड करना है, रेशियो. ठीक है, और रेशियो के फॉर्म में ही आंसर गिवन है पूरा. ठीक है, हाँ, तो फिर क्या करो,
by using internal division, apply internal division here. By using internal division, we write 3 into n plus 8 into m divided by m plus n. ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमारे पास, c का कोऑर्डिनेट होगा अभी ये, ठीक है। और ये c कोऑर्डिनेट कहां पे लाई कर रहा है, विच लाइज इन अवर गिवन लाइन, ओके, लाइन विच इज हियर x माइनस वाई माइनस 2 के ऊपर थर्ड पॉइंट c लाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इफ एनी थर्ड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मींस दैट थर्ड पॉइंट इज द सॉल्यूशन फॉर आवर लाइन सेगमेंट, ओके। तो यहाँ पे जो कुछ थर्ड पॉइंट आएगा ना, पॉइंट सी, विच इज द सॉल्यूशन फॉर दिस लाइन सेगमेंट, मतलब अगर हमने वो थर्ड पॉइंट सी को लाइन सेगमेंट में पुट कर दिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू फॉर थर्ड पॉइंट सी हियर, और उसके बाद पुट करेंगे x माइनस वाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 में, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर पॉइंट थर्ड सी? Now C, for finding the value of a C, we use the section formula for internal division, like a 3 into n plus 8 into m, okay, 8 into m divided by m plus n or n plus m, okay. As we are taking a denominator, numerator n plus m, write down denominator as n plus m, okay, this one. Now next coordinate पे क्या होगा, 9 into m और minus 1 into n plus 9 into m. So 9 into m minus 1 into n, okay, divided by n plus m here, okay. This one is our section formula for internal division. Why this negative? Because we have second coordinate which is minus 1, okay. तो क्या देगा हमारे पास, नेगेटिव कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, दिस वन इज अवर x कोऑर्डिनेट, दिस वन इज अवर y कोऑर्डिनेट, ओके। So using x and y coordinate, find out the value for our line, okay? तो इस लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा, the third point C which lies in this line. और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे होता है कि अगर किसी लाइन के ऊपर कोई थर्ड पॉइंट आ रहा है तो वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है कि वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, उसमें ऐसे कुछ लाइन है, ठीक है, उसमें कुछ अगर ऐसे कुछ मुझे पॉइंट मिल गए, ठीक है, कंसीडर दिस पॉइंट थर्ड पॉइंट, ओके। तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो थर्ड पॉइंट क्या होगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा उस लाइन के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये सी पॉइंट है सॉल्यूशन x माइनस वाई माइनस 2 के, ठीक है। तो x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको इजीली m एंड n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 3n, लेट मी चेंज द कलर नाउ। हाँ, तो हमारे पास क्या है, 3x का वैल्यू 3 इंटू n प्लस 8 इंटू m अपॉन n प्लस m, ओके, दिस वन इज द वैल्यू फॉर x। उसके बाद y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9m माइनस n, 9m माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस m, ओके, दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट, माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू, ओके। हमने क्या करे यहाँ पे, व्हाट आई हैव डन, I substitute the value for x here, y here and minus 2 as it is. This one is our given line, okay? ये हमारे पास given line है, ठीक है। उसमें x and y का वैल्यू पुट कर दिए। हाँ, तो let's go for finding the value for n and m. Take n plus m common everywhere throughout this. तो what we get, 3n plus 8m minus 9m plus n, okay? Plus n, why? Because minus 9n and minus minus it goes to the plus. So minus 2 into m plus n or n plus m which is equal to 0. Now that what we have taken, what we have done here, we taken n 1 upon n plus m common, ठीक है। यहाँ से 1 upon n plus m common ले लिए, taken to the other side। अगर वो 0 को मल्टीप्लाई होगा तो whole entire term goes to 0, ठीक है, वो पूरा 0 हो जाएगा। तो let's go for finding the value for n and m. So we write this step as a 3n plus 8m minus 9m प्लस n माइनस 2m प्लस n विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। एड द टर्म ऑफ n एंड m, ओके। सो 3n प्लस n 4n प्लस n 5n, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट n का एडिशन क्या मिलेगा, 3n प्लस n, ओके। 3n प्लस 2n मीन्स 5 टाइम्स n, ओके। So 8m minus 9m which is a negative of m, okay, negative of m minus negative of 2m. So we write negative of 3m which is equal to 0. Okay, now see that. So what we found here, 3n
plus n, 4n plus n, 5n, okay? So we got the value for n, which is a 5n. No, sorry, it is not the 5n, okay? Because 2 it is multiplicand here. So minus 2m, so we have to write this step again. 2 times m plus n is there, okay? So this one will be, we write, okay, 3n as it is, 8m as it is, minus 9m as it is, okay? And minus n as it is, okay? माइनस ऑफ माइनस मीन्स पॉजिटिव n एज इट इज. उसके बाद माइनस टू मल्टीप्लाई है m प्लस n को, तो देन वी राइट माइनस टू m माइनस टू n हियर, ओके? सो माइनस टू यहाँ पे बाकी रह गए थे, ठीक है? माइनस टू m माइनस n विच इज इक्वल टू 0. नाउ एड n टर्म टू द n एंड m टर्म टू द m टर्म, ओके? सो 3n प्लस n 4n प्लस माइनस 2n, ओके? 3n प्लस n 4n माइनस 2n वी राइट 2n ओनली, ओके? 3n प्लस n 4n माइनस 2n 2n. उसके बाद n का टर्म तो हो गए हमारे पास. लेट्स ऐड m टर्म 8m माइनस 9m विच इज द नेगेटिव m, नेगेटिव 2m वी राइट नेगेटिव 3m, ओके? 3m विच इज इक्वल टू 0, ओके? सो वी राइट 2n विच इज इक्वल टू 3m. सो वी राइट 2 by 3 which is equal to m divided by n, okay? m divided by n I have written 2 divided by 3. तो m as to n क्या होगा हमारे पास? Ratio m as to n we write it as the 2 as to 3 here, okay? Now see that in our option number B we have given ratio for internal division, okay? Internal division of our line segment we have here 2 as to 3, okay? तो हमें फाइंड क्या करना था? रेशियो फाइंड करना था that our third point divides our line segment, okay? तो रेशियो क्या मिला है हमारे पास? 2 as to 3 मिला है, which given in our option number B, okay? Now let's move for the next example. I hope you all have understood. हाँ, तो हमारे पास क्या है? Find the ratio. Next example में given है find the ratio in which line segment joining the point 6, 4 and 1 minus 7 divided by x axis, okay? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा? y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या होता है? हमारे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को यूज करना है हमें. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? we write y which is equal to 0, okay? So that concept we have to apply here along with the section formula, okay? तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? हाँ, तो देखो हमारे पास रेशियो तो गिवन नहीं है. अगर हमारे पास इंटरनल डिवीजन के लिए कोई रेशियो कंसीडर करना है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं? एक रेशियो कांस्टेंट लेते हैं, एक रेशियो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? और उसको लेके हम वैल्यू फाइंड करते हैं. लेट्स गो फॉर फाइंडिंग द रेशियो. तो हमारे पास गिवन है लाइन सेगमेंट. क्या है लाइन सेगमेंट? है यहाँ पे कंसीडर करो लाइन सेगमेंट ए बी वी हैव हियर. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए विच इज 6, 4 and the coordinate for B we write 1 minus of 7, okay? So we write the coordinate of B 1 negative of 7, and by using section formula we have to find out the value for third point here, okay? थर्ड पॉइंट को फाइंड करेंगे एंड देन वी फाइंड द रेशियो फॉर द पॉइंट, ओके? अगर हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं तो क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वहां पे सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है? दिस वन वुड बी द ट्रिक टू अंडरस्टैंड, ओके? अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो गिवन है दो लाइन के बीच में, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें ऑलवेज वी हैव टू अप्लाई देयर, ओके? हाँ, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट सी दैट हमारे पास वी डोंट हैव एनी रेशियो गिवन बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो कोई रेशियो गिवन नहीं है, क्लू भी नहीं, तो इन सच ए केस वी कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे हम? कंसीडर लैम्बडा एज टू 1 बी द ratio, okay, of line segment AB which divides third point C, okay? Third point C internally, okay? हमने क्या कर दिया यहाँ पे? लैम्बडा एज टू 1 कुछ ऐसा रेशियो कंसीडर करे, ठीक है? एक तो रेशियो वन साइड का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, द रेशियो फॉर C to B वी कंसीडर 1,
and A to C we consider here as the lambda. Okay, तो हमारे पास ratio between point AC and CB we write it as the lambda as to 1. Okay, why lambda as to 1? We don't have any idea about the section. Okay, section between these two points. तो उसके लिए हमें एक तो लैम्बडा लेना है, दूसरा 1 लेना है. ठीक है, अगर एसपीआई के क्वेश्चन पेपर में आपको सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन मिल रहे तो ऑलवेज कंसीडर करना है वहां पे एक रेशियो कांस्टेंट होगा, एक रेशियो वेरिएबल होगा, और जो कांस्टेंट रेशियो है वो ज्यादा बड़ा नहीं लेना है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट 1. ओके, तो एक रेशियो 1 हो जाएगा, दूसरा लैम्बडा हो जाएगा. ठीक है, तो एक को हम क्या करेंगे लैम्बडा, दूसरे को 1 कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो एक को मैंने लैम्बडा कंसीडर करे, यहाँ पे एक को 1 करे. ठीक है, सो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. तो ऑलरेडी हमने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, तो उसको अप्लाई करना है. तो क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो क्या होगा 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू लैम्बडा प्लस 1 इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा. ये क्या होगा हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 इंटू 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस 1 इंटू लैम्बडा. ओके, सो माइनस 7 इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्लस 1. ये क्या हुआ हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. ओके, हाँ, तो ये सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन आई फाउंड दिस वैल्यू. तो उसको आगे फाइंड कर दो. 6 इंटू 1 आई राइट दिस वन एज 6 ओनली, प्लस 1 into lambda 6 plus lambda and 1 plus lambda keep as it is, because lambda it is a variable, तो उसके ऊपर हम ज्यादा कुछ ऑपरेशन नहीं करने वाले. ठीक है, उसमें से हमें लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, अगर लैम्बडा का वैल्यू फाइंड कर दिए तो इजीली वी कैन फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू लाइन सेगमेंट. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 वी राइट 4, माइनस 7 इंटू लैम्बडा वी राइट माइनस 7 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1. ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास third point C which divides our line segment AB. Okay, third point C which divides our line segment AB in the ratio of a 6 plus lambda upon 1 plus lambda and 4 minus 7 lambda upon lambda plus 1. Okay, तो ये क्या होगा हमारे पास ये रेशियो मिलेगा, बट ये तो रेशियो हमारे पास ऑप्शन में नहीं ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसमें लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है. बट इन अवर क्वेश्चन वी हैव वन मोर कंडीशन. वो क्या कंडीशन है हमारे पास, वो जो पॉइंट है ना कहां पे कर रहा है डिवाइड्स एक्स एक्सिस. मतलब क्या है हमारे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस गिवन है. ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड्स एक्स एक्सिस. ओके, दैट मींस वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है हमारे पास y विच इज इक्वल टू 0. ओके, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है y विच इज इक्वल टू 0. नाउ सी दैट ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. देन पुट द वैल्यू y विच इज इक्वल टू 0. देन वी राइट 4 माइनस 7 लैम्बडा, 4 माइनस 7 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1. ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. y गोज टू 0 बिकॉज हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस गिवन है. ठीक है, तो y वहां पे 0 होने वाला है. तो लैम्बडा प्लस 1 इट इज द डिनोमिनेटर हियर, उसको ले लो दूसरी साइड पे, इट गोज टू बी द numerator here. Okay, so lambda plus 1 into 0 8 remains 0, so 4 minus 7 lambda which is equal to 0 here. Okay, 4 minus 7 lambda we write which is equal to 0 here. Okay, now find out the value for lambda, it is easier, so we write a 7 lambda which is equal to 4. Okay, then lambda which is equal to 4 divided by 7. वो क्या वैल्यू मिला है हमारे पास 4 by 7 मिला है. What is the value for lambda 4 by 7. Okay, but as earlier we consider here lambda as to 1 be the ratio of a line segment AB which divides third point C internally. Okay, तो third point क्या है C है, वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहे हैं lambda as to 1. ओके, तो lambda as to 1 क्या हो जाएगा 4 by 7 as to 1 हो जाएगा. ठीक है, 4 by 7 as to 1 हो जाएगा. तो फिर 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पे, क्या होगा 4 as to 7 आंसर मिलेगा. ठीक है, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है ना, उसमें थर्ड पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है 4 as to 7 में कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट डिस्टेंस 4 होगा, सेकेंड डिस्टेंस 7 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड आंसर गिवन इन अवर ऑप्शन नंबर बी. ओके, 4 as to 7 और 7 as to 4 बोथ आर सेम. ओके, तो हमारे पास में क्या मिला है यहाँ पे 4 as to 7 विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट.
एग्जाम्पल, ओके। इन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ओके। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है उस किसके ऊपर डिपेंड है, कोऑर्डिनेट फॉर एक्स एंड कोऑर्डिनेट फॉर वाई, ओके। So coordinate for x and coordinate for y already I explained here, okay. So coordinate for x and coordinate for y, it gives first quadrant all goes to positive, second quadrant में x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, सॉरी लेट मी राइट दिस वन अगेन। यहाँ पे y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और x क्या होता है, निगेटिव होता है। तो x कैसे निगेटिव, y कैसे पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वी हैव x पॉजिटिव एंड y which is negative here, okay. This one is the sign convention for x and y coordinate, okay. Now see that we have given which point lie on a x axis, okay. Now here simple trick for whenever we have point lie on a x axis, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x axis का इक्वेशन ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ x axis we know that y which is equal to 0, और y 0 कहाँ पे मिल रहे, जो चारों ऑप्शन है we have given for this option, equation of x axis we have to apply here, okay. equation of x axis क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास y0 होता है। देखो अगर y0 जिस ऑप्शन में है ना, वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नाउ सी दैट इन आवर ऑप्शन नंबर सी वी हैव गिवन 2 0 एज अ y कोऑर्डिनेट 0 हियर, ओके। तो y कैसे मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं ना। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर हियर क्या होने वाला है, 2 0, ओके। दिस वन इज द फर्स्ट वे फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अनदर वे आपको तो मालूम है, डायरेक्टली प्लॉट कर दो x एंड y का कोऑर्डिनेट, यू विल गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना है तो लेट्स प्लॉट द पॉइंट। पहले 3 2 है, 3 2 वी नो दैट इट कम्स समवेयर हियर हियर हियर, ओके। अगर दोनों कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है तो क्या हो जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस पॉइंट्स आर कमिंग अंडर प्लेन, बट एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट विच गोज टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y 0 है तो x क्या होगा, 2 होगा। तो ये जो फर्स्ट ये कोऑर्डिनेट होगा ना हमारे पास, ये क्या होगा, पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। वो क्या होने वाला है, 2 0 विच इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। आई होप सबको समझ में आ गया सोल्यूशन। हाँ, विच पॉइंट लाई ऑन अ वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर हमें वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कौन सा कर रहा है ये फाइंड करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, विच इज एक्स विच इज इक्वल टू 0, ओके। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y axis, okay, we write which is x which is equal to 0 here, okay. equation of y axis we write this one, x which is equal to 0. तो x 0 देखो कहां पे, ऑप्शन बी में x 0 मिल रहे, we do not have any other coordinate which is 0, okay. और अनदर वे, नाउ सी दैट फॉर सॉल्विंग सिंगल क्वेश्चन देयर आर सेवरल अदर वे, ओके, कि हम उससे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कंप्लीटली अप टू यू ऑल विच यू फाउंड सुटेबल, ओके। उसको अप्लाई करो और फाइंड आउट द आंसर। अगर आपको चाहिए तो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी प्लॉट कर दो, x1 है y2 है कहीं पे यहाँ पे होगा, सेकेंड x0 है y2 है वो y एक्सिस पे आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट 2 3 है वो भी यहाँ पे कहीं तो आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट -3 -2 है वो यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। नाउ सी दैट ये चारों पॉइंट है, उसमें से चेक करो y एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ऑब्वियसली ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, 0 x0 एंड y2, ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, y एक्सिस पे। सो अवर रिक्वायर्ड आंसर कौन सा मिलेगा, आंसर बी करेक्ट हियर, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, नथिंग इट इज डिफिकल्ट, ओके। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। कौन सा ग्राफ एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करे इसमें एक्स एंड वाई के पॉइंट कैसे प्लॉट करे, ठीक है। हाँ, विच ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नाउ प्लॉट द पॉइंट y विच इज इक्वल टू 2, y1 है y2 है, ठीक है। तो इसको प्लॉट कर देंगे तो कैसे मिलेगा, y विच इज इक्वल टू 2। नाउ सी दैट आर दीज टू लाइंस पैरेलल, ऑब्वियसली दो लाइन कैसे पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, y विच इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल which is a parallel to x axis, okay। ये क्या मिलेगा हमारे पास, x एक्सिस को पैरेलल मिलेगा। देखो सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपको ESPI के PYQ में मिलेंगे, ठीक है। तो मे बी इट्स प्रोबेबल चांसेस कि नेक्स्ट SPI का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बनने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा इसको और फोकस करके थोड़ा और रिवाइज करो, ट्राई टू सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन, ओके। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे. x which is equal to 3 we know that the point which is coming here which are the perpendicular to x axis, वो तो पैरेलल नहीं होगा ना फिर. हाँ, तो फिर x which is equal to 3 ये तो चला जाएगा. x which is equal to 2y ऐसे कुछ इक्वेशन जाएगा. a भी नहीं होने वाला पैरेलल टू x एक्सिस. y x प्लस 1 ऐसे फर्स्ट वाला ऐसे होगा, तो a भी नहीं पैरेलल होने वाला. हमें फाइंड क्या करना है, x एक्सिस को पैरेलल पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है. So I hope you all have understood this solution. So that's it for our today's lecture. आज की इस लेक्चर में we have learned okay some of the important formula based on the coordinate geometry. Okay, so let me recap what we have learned so far in our today's lecture. At the beginning हमने learn किए कि by using quadrant how can we plot the point. Second में हम learn किए different formulas like midpoint formula, section formula. After that we learn centroid formula, distance point formula. Okay. So and within that the distance from origin, non-origin, section formula for internal division, external division, all these concepts we have learned here in our today's lecture. Okay, so I'm expecting that you all have understood everything from my today's lecture. Even after, if you found anything difficult, let me know in my comment section. I will come up with the similar videos. Okay, so thank you everyone. Thank you for my today's lecture.